6 مارچ کو ہونے والے ریفرینڈم میں کے ڈی اے میں زوردار بھرپور انداز میں ریسنٹلی کیمپین چلانے والی کے ڈی اے امپلائیز یونین اب دیکھتے ہیں کہ وہ اس مقام پر جس طرح سے وہ کھڑی ہوئی ہے اس کو کس طرح سے اس لے کر چلے گی اور اپنی کامیابی اور اپنی فتح سے کس طرح اس کو ہم کنار کر پائے گی. ریسنٹلی انہوں نے ایک بھرپور شاندار جلسہ کر کے ایک دھاک بٹھانے کی کوشش کی ہے. اب دیکھتے ہیں یہ اس کو اس طرح کنٹینیو کرتے ہیں. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں کے ڈی اے امپلائیز یونین کے چیئرمین عبدالمعروف صاحب, کے ڈی اے امپلائیز یونین کے صدر ندیم کھوکر صاحب اور جوائنٹ یونٹ انچارج لیبر فیڈریشن عمران حسین صاحب. اب ہم ان سے معلوم کرتے ہیں کہ انہوں نے آنے والی اپنی کیمپین میں مزدوروں کے لیے کیا ایسا منشور بنایا ہے جو مزید جو مشکلات ہیں اس میں ان کو کس طرح سے وہ اس کو نکال پائیں گے, اور جو ان کا اور جو اپوزیشن ہے, جو یہاں کی دوسری ٹریڈ یونینز ہے, سابقہ سی بی اے جو ہے, ان کے اور ان کے بیچ آپس میں کیا کوارڈینیشن, کیا پیش رفت ہوگی, کیا کم ہوگا, کیا زیادہ ہوگا, کیا اس کی پچھلی پروگریس رہی ہے, اس میں ان کو یہ کس طرح سے مینیج کر پائیں گے. میرا پہلا سوال ہے کہ آپ سب سے پہلے مجھے اپنا ایسا منشور بتائیے معروف صاحب کہ آپ مطلب اس جو سابقہ سی بی اے ہے انہوں نے جو چارٹرڈ آف ڈیمانڈ پیش کیا تھا اس سے اس میں کیا بہتری ہے, کیا چیز ہے, کیا اپ ہے, کیا ڈاؤن ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. کے ڈی اے امپلائیز یونین متحدہ پاکستان یونائٹڈ لیبر فیڈریشن نے اس وقت جو 6 مارچ کو ریفرینڈم ہو رہے ہیں اس سلسلے میں ایک منشور پیش کیا ہے. وہ منشور جو ہے 26 نکات پر مشتمل ہے. اس کے کچھ پوائنٹ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں. سیکورٹی گارڈ کو 20% سیکورٹی الاؤنس دیا جائے گا. سن کوٹے پر بھرتی کرائی جائے گی. تمام ملازمین کو پلاٹ بذریعہ قراندازی دی جائے گی. میڈیکل کی سہولتوں کو بہتر کیا جائے گا. کانٹریکٹ اور ورک چارج ملازمین کو بحال کرانے کے ساتھ مستقل کروایا جائے گا. اقلیتی برادری کے لیے مراد میں اضافہ کیا جائے گا. کانٹریکٹ ٹیچر کو مستقل کیا جائے گا. جو اسکول ٹیچر بی ایڈ ایم ایڈ کر چکی ہیں ان کی اہلیت کے مطابق اگلے درجے پر ترقی دلائی جائے گی. آرٹی کلچر کے ملازمین کو 20% اسپیشل الاؤنس دیا جائے گا. پائپ فیکٹری کو بحال کروایا جائے گا اور اسے کمرشل بنیادوں پر چلایا جائے گا. یہ تھے کچھ اس کے اہم نکات. میرا سوال ہے جوائنٹ لیبر انچارج فیڈریشن عمران حسین صاحب سے کہ 2004 میں کے ڈی اے میں ریٹائرمنٹ کے بعد ہزاروں کی تعداد میں اسامیاں خالی ہو رہی ہیں. اب ہمارے ذرا یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو اسامیاں پر ہوں گی وہ سندھ حکومت کے ذریعے ہوں گی. کیا اتھارٹی میں یہ کوئی قانون ہے کہ اتھارٹی میں کوئی آ کے انٹرفیرنس کر سکتا ہے یا اس طرح کی کوئی مداخلت ہو سکتی ہے؟ تو مطلب آپ قانونی اس سے بتائیے مجھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت اہم سوال کیا میری بہن آپ نے, اور اس کا بالکل دمنگ اور واضح جواب دوں گا کہ ہمارے ہاں 1800 سے 2000 کے قریب ویکنڈ پوسٹیں یہاں پر خالی ہیں, خالی اسامیاں موجود ہیں, جس پہ متواتر سندھ سیکریٹریٹ سے لیٹر منگوا کے ویکنسی پوزیشن وہ لے رہے ہیں. اور میں جس پارٹی سے ریلیٹڈ ہوں متحدہ قوم پاکستان, اس کا تو منشور ہے, اور ہم نے اپنا جو کے ڈی اے کا منشور واضح کیا ہے اس میں کلیئر کہا ہے کہ سن کوٹے سے پابندی ہٹا کر پہلے کے ڈی اے کے اسٹاف کے بچوں کو ان کا جائز حق دیا جائے. اس کے بعد کراچی ڈومیسائل پر کراچی کے شہریوں کو, ان بچوں کو جن کے ماں باپ نے بڑی قسمہ پرسی میں ان کی کفالت کر کے آج ان کو گریجویشن کی ڈگری دلائی ہے یا ان کو ٹیکنیکل ڈگریز دلائی ہیں, پہلا حق ان بچوں کا ہے ان ویکنڈ پوسٹوں پر. اگر کسی بھی صورت ان پہ شب خون مارا گیا تو امپلائیز یونین جو سی بی اے آج تک, ابھی ہم الیکشن کمپین چلا رہے ہیں, لیکن ہماری جو کارکردگی ہے اس ادارے کے اندر انشاءاللہ ہمیں ملازمین پہ بھی بھروسہ ہے, اپنے اسٹاف پہ بھروسہ ہے کہ وہ مکمل حمایت کریں گے امپلائیز یونین کی. امپلائیز یونین بیلٹ کی طاقت سے سی بی اے بن کر جب باہر آئے گی تو آپ کا جو سوال ہے پھر ہم اس کو چارٹر آف ڈیمانڈ میں بھی رکھیں گے, اور ایسے کسی بھی حکم نامے پر بھرپور احتجاج کا آئینی قانونی حق
महफूज रखते हैं। नदीम खोकर साहब, आप हमें ये बताइए कि केडीए के कितने असासाजात हैं और उन्हें किस तरह यूटिलाइज़ करके रेवेन्यू जनरेट किया जा सकता है। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ा अच्छा सवाल आपने मुझसे किया है केडीए के असासे के बारे में। असासों में हमारा सबसे पहला है पाइप फैक्ट्री, जो कि पाइप फैक्ट्री है हमारा, जो बहुत बड़ा असासा है। और कई ऐसे हमारे प्लॉट हैं, कीमती प्लॉट, जिनको ऑक्शन किया जाए तो हमारे काफ़ी असासे आ सकते हैं। लेकिन इंतज़ामिया कुछ ऐसे हरबे इस्तेमाल करती है जिससे कुछ, और गवर्नमेंट ऑफ सिंध इंतज़ामिया के साथ गवर्नमेंट ऑफ सिंध के वो हमें हमारे असासे देने पे कासिर है। तो हमने भरपूर कोशिश कर रहे हैं। सीबीए ना होने के बावजूद चेयरमैन अब्दुल मारूफ भाई और हमारे इमरान जाफरी भाई ने भरपूर कोशिश की पाइप फैक्ट्री के हवाले से। और जो हमारे कमर्शलाइज प्लॉट हैं, जिनको ये कोड़ियों के दाम मुख्तलिफ लोगों को दे रहे हैं और कर रहे हैं, ऑक्शन नहीं कर रहे, तो हम भरपूर एहतजाज कर रहे हैं। और इंशाअल्लाह ताला जब सीबीए हम आएंगे, जैसे आप देख रही हैं, माहौल देख रही हैं, हमारे हक़ में अल्लाह ताला ने अगर हमें इज़्ज़त दिलाई तो जो हमारे असासे हैं ना, इंशाअल्लाह ताला इनसे हम छीन लेंगे। अब्दुल मारूफ साहब, आप मुझे ये बताइए कि जब 2016 में केडीए बहाल हुआ था तो 2 साल के लिए सिंध हुकूमत से आपको ग्रांट मिली थी। आज उस 2 साल को गुजरे कितना अरसा हो गया है, क्या सिंध हुकूमत की मदाखलत की सबसे बड़ी वजह ये ग्रांट तो नहीं है कि जिसको वो बेस बनाकर वो यहाँ पर मदाखलत करते हैं? अगर ये ऐसा है तो आप सबसे पहले इस ग्रांट से किस तरह जान छुड़वाएंगे? 2016 में इदारे तरक्यात कराची को बहाल किया गया और सूबाई असम्बली से बिल पास हुआ, एक एक्ट पास हुआ। उस एक्ट में ये साफ लफ्ज़ों में लिखा हुआ है कि हम इदारे तरक्यात कराची को 2002 की पोजीशन में बहाल कर रहे हैं। तो हुकूमत सिंध ने सबसे पहले तो हमें 2002 की पोजीशन में बहाल नहीं किया। अगर 2002 की पोजीशन में बहाल करते तो एसबीए हमारा होता, एलडीए हमारा होता, एमडीए हमारा होता, लियारी डेवलपमेंट हमारा होता, मास्टर प्लान हमारा होता। 2016 के बाद 2018 में हमारा एक और उंगली काट दी गई, जो कि मास्टर प्लान, कराची मास्टर प्लान था, उसको बना दिया गया है सिंध मास्टर प्लान। केडीए एम्प्लॉइज़ यूनियन हुकूमत सिंध से ये मुतालबा करती है कि आप 28 करोड़ रुपए की हमें ग्रांट देते हो, और जब 2016 में केडीए बहाल हुआ था तो आप 17 करोड़ की ग्रांट आती थी, आज 28 करोड़ की ग्रांट आती है। बिल्कुल आपकी बात सही है, आप हमें ग्रांट तो देते हैं, लेकिन हमारे असासे आपने हमारे कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के टुकड़े कर दिए। आपके चैनल के तवज्जुह से ये मैं बताता था चलूँ कि पाकिस्तान के 4 सूबे हैं, हर सूबे में एक अथॉरिटी है। पंजाब में एक अथॉरिटी है, बलूचिस्तान में एक अथॉरिटी है, और सूबे सरहद में एक अथॉरिटी है। सूबे सिंध के अंदर इतनी अथॉरिटियाँ क्यों काम कर रही हैं? तो आपने इदारे तरक्यात कराची को ख़ुद ख़त्म करने की प्लानिंग बना ली है। आप नहीं चाहते कि ये इदारा अपने पैरों पे खड़े हुए इसकी आमदनी में इजाफा हो, मुलाजिमीन को इसकी मराहत मिलें। केडीए एसडीए बनने जा रहा है, ये आवाज़ें आ रही हैं। जिस तरह एसबीसीए केबीसीए था पहले, फिर वो एसबीसीए बना, इस तरह मास्टर प्लान सिंध मास्टर प्लान बना। जब ये केबीसीए था और एसबीसीए बना, ये मास्टर प्लान बना, तो ये एक रेजोल्यूशन सिंध असम्बली से पास हुई है जिसमें भारी अक्सरियत में एमक्यूएम मौजूद थी। अब उस वक्त रजिस्ट क्यों नहीं किया गया? और अब अगर एसडीए बनने जा रहा है तो आप किस तरह रजिस्ट होगा? क्योंकि असम्बली से ही बिल पास होगा, लेकिन मसला है वहाँ पर अब अक्सरियत नहीं है। तो अब ये आप पर सवाल आएगा और आना भी चाहिए कि जब आपकी जिम्मेदारी थी, जब आप असम्बली में बैठे हुए थे, तो आपने किस तरह उस रेजोल्यूशन पर साइन किया, और अब अगर एसडीए बनेगा तो आप किस तरह रजिस्ट करेंगे? देखिए मेरी बहन, आपने सवाल किया कि असम्बली में उस वक्त हमारे लोग मौजूद थे, इस पर आवाज़ क्यों नहीं उठाई या इसके बिल के अगेंस्ट सिग्नेचर क्यों नहीं किए। तो आप जानती हैं कि असम्बली के अंदर पीपल्स पार्टी की हुकूमत हमारे साइंस के बग़ैर भी वो बिल मंजूर कर सकती थी है, वो भारी अक्सरियत से हैं। ठीक है, विफाक में उन्हें हमारी ज़रूरत है, आप जानती हैं, लेकिन सिंध के अंदर अपनी गवर्नमेंट के लिए उनको हमारी वो पोजीशन नहीं है। उसकी भी वजह आपके सामने है कि हमारे साथ सरन ज़्यादती होती रही है कि हमारी आबादी को कम गिना जाता है। हमारी आबादी मुकम्मल अगर इंक्लूड कर दी जाए मर्दमशुमारी में, तो अल्हम्दुलिल्लाह जब इस शहर के बासी भारी अक्सरियत से असम्बली में मौजूद होंगे,
जब उनका चीफ मिनिस्टर होगा तो इस तरह के जालिमाना आमिराना फैसले मैं नहीं समझता फिर असेंबली से होंगे। मारूफ साहब, आप ये बताइए कि इंक्रोचमेंट के नाम पर सरकारी अराजियाँ वागुजार तो कराई जा रही हैं और उन्हें कहा जा रहा है कि गरीबों के लिए एक सस्ती स्कीमें लाई जाएंगी, जैसा कि केडीए का काम ही शहर आबाद करना है। तो मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि नाम तो गरीबों का लिया जा रहा है, आप उनको ज़रा जाकर देखें और उनकी कॉज ऑफ लिमिट देखें, सब कुछ देखें। इसमें गरीब मतलब किस तरह आबाद होगा वो मुझे बताइए ना, कि गरीबों के नाम पे करोड़ों रुपए के प्लॉट या करोड़ों के फ्लैट या लाखों के फ्लैट हम गरीब किस तरह ख़रीद सकते हैं। तो मतलब आप इन किस तरह मतलब गरीबों को ये इन ज़मीनों में मैनेज करेंगे, किस तरह आबाद करेंगे, और क्या ये ज़रूरी है कि हम फ्लैट बनाकर ही लोगों को दें, हम उनको प्लॉटिंग नहीं कर सकते, सस्ते प्लॉट नहीं बना सकते। और इसी तरह लोग वही झांसा दे के बैलेटिंग पर सरकारी ज़मीनों पर गोट बना देते हैं, गोट काट देते हैं, फिर वो गरीब वहाँ चले जाते हैं, फिर उनका पैसा ख़त्म हो जाता है, फिर मामला मतलब इस तरह सब आपको मामला का पता है। तो मतलब आप जब CBA आएंगे इंशाल्लाह तो फिर आप किस तरह की इस ज़मीनों को गरीबों के लिए यूटिलाइज़ करवाएंगे इदारे के तहत। देखिए, आपने बात की है फ्लैटों की, गरीबों की, आम शहरियों की। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि केडीए ने अभी एक सरजानी में प्रोजेक्ट ऐलान किया है फ्लैटों का, उसकी जो कॉस्ट रखी है वो करोड़ों में है। आम आदमी सरजानी में रहने वाला उसको नहीं खरीद सकता। इस सिलसिले में हमारी डायरेक्टर जनरल साहब से मीटिंग हुई है, लेकिन इस सिलसिले में अभी तक जो भी काम इन्होंने किया है इस पे मुकम्मल अभी फॉर्म इशू नहीं हुए हैं, लेकिन काम चल रहा है इंशाअल्लाह। क्योंकि हम अपोजिशन में हैं, हम CBA नहीं हैं। इंशाअल्लाह 6 तारीख के बाद इसको जब हम फ़तह केडीए एम्प्लॉइज़ यूनियन की हो जाएगी तो हम इस सिलसिले में इंतज़ामिया से बात करेंगे, डायरेक्टर जनरल से बात करेंगे, सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट से बात करेंगे, और रहा वज़ीर बल्दियात से। अब रहा के प्लॉटों की स्कीमें नहीं आ रही है, हॉक्स बेस की स्कीम की, 63 टाउन की, बहुत सारी स्कीमें इस वक्त ख़त्म हो गई हैं। हमारे पास ज़मीन नहीं है, हमें तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से ज़मीन परचेज़ करनी है। हमारा काम ये है कि हम बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को ज़मीन परचेज़ करें, फिर वो गरीबों के लिए इसको ऐलान करें। इस सिलसिले में भी इंतज़ामिया बिल्कुल कंजूसी से काम लेती है। GB के चेयरमैन जो है नासिर हुसैन शाह है। इंशाअल्लाह हमारी सबसे पहले इंतज़ामिया से ये मुतालबा है कि आप सस्ती ज़मीन परचेज़ करें, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से लें और उसको गरीबों के लिए कुरानदाजी के लिए ऐलान करें। बतौर केडीए एम्प्लॉइज़ यूनियन चेयरमैन आप अपने वर्कर्स के लिए क्या पैगाम देंगे? केडीए एम्प्लॉइज़ यूनियन MQM पाकिस्तान यूनाइटेड लेबर फेडरेशन इंशाअल्लाह 6 तारीख़ को मुख्य की फ़तह होगी, और फ़तह होने के बाद हम सबसे पहले मुलाज़मीन के बुनियादी मसाइल को फ़ोकस करेंगे। सबसे बड़ा बुनियादी मसला उनकी तनख्वाहों की अदायगी का है। उनकी तनख्वाहों की अदायगी पूरा माह गुज़र जाता है, सैलरी नहीं मिलती है। रिटायर्ड लोगों की पेंशनें वक्त पर अदा नहीं की जाती है। रहा दूसरा अहम मसला मुलाज़मीन का, वर्कर का CP फ़ंड का है। CP फ़ंड जो कि उनकी अपनी तनख्वाह से कटता है, हर माह उसकी कटौती होती है, वो एक अकाउंट्स में जाता है, वो जमा होता है। उसके बावजूद अगर किसी मुलाज़मीन को बवक्त ज़रूरत उस पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो इदारा उसको पैसे देने से कासिर होता है। वो दर दर की ठोकरें खाते फिरता है, वो हर दरवाज़ा खटखटाता है भिखारी के जैसा। सबसे बड़ी अहम बात यह है कि जब 2017 के अंदर एक CBA केडीए मजदूर यूनियन CBA बनकर मुंतखब हुई तो उसने 2017 में 650 वर्चाज मुलाजमीन को बेरोज़गार कर दिया। उसमें से कई मुलाजमीन मर गए, कई मुलाजमीन के घरों में फाका कशी हुई। आज 6 साल का अर्सा गुजर गया है, लेकिन केडीए एम्प्लॉइज़ यूनियन आपसे ये वादा करती है आपके चैनल से, इंशाअल्लाह बरसर इख्तिदार आकर सबसे पहले उन वर्चाज मुलाजमीन को और कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को बहाल किया जाएगा। दूसरी अहम बात, केडीए एम्प्लॉइज़ यूनियन केडीए के मुलाजमीन जो 40 साल 35 साल 45 साल वो इदारे में वफ़्त कर देता है, जब वो यहाँ से रुखसत होता है, जब वो इस इदारे से रिटायर्ड होता है तो उसका बच्चा अपॉइंट नहीं होता, उसकी बच्ची अपॉइंट नहीं होता। तो इस सिलसिले में केडीए एम्प्लॉइज़ यूनियन सन कोटे जो कि एग्रीमेंट के अंदर शामिल है, ये तो सन कोटे पे भर्तियाँ, बच्चों की भर्तियाँ कराई जाएंगी, मुलाजमीन के बच्चे भर्ती कराई जाएंगे।